ओम ॐ नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। Hare Krishna, everyone. So I was just talking to Maharaj Ji about this art of notes making, and I was talking to also Gaurav Prabhu, and Gaurav Prabhu said that we should not call it notes making, because notes making is usually treated as something which we have been doing since the childhood and is never taken very seriously. So I asked Maharaj Ji, what name can we give? So Maharaj Ji has given us some options. I would like to put that in front of all of you because Maharaj Ji wanted that everybody should participate in this process. So Maharaj Ji has given the name, we can call it Gita Tattva Sar, Gita Tattva Chintan, Gita Tattva Vivechan, Gita Siksha Chintan, Gita Shiksha Manthan, गीता अनुमंथन, फिर है गीता आश्रय चिंतन. Which one do you like the most? The last one is Gita Ashray Chintan. The name. Can you put them on the chat, Prabhu? Oh, you can just quickly note down Gita Tattva Sar, Gita Tattva Chintan. Oh, Gita Tattoo Sar nahi hai. You wrote Gita Tattoo Sar. Correct, Prabhuji, sorry. Gita Tattva Sar, Gita Tattva Chintan, Gita Tattva Vivechan, Gita Siksha Chintan, Gita Siksha Manthan, Gita Anuchintan, Gita Ashray Chintan. What is the meaning of Anuchintan? Detail में deeply, deep meditation of Gita. Yes, Renu. I like Gita Ashray Chintan. Gita Ashray Chintan. Anybody else who likes this? Gita Ashray Chintan. Gita Ashray Chintan. Also Vrinda Gita Ashray Chintan. Anyway, Sureka Mataji. What is the meaning of Vivechan, Prabhuji? Gita Tattva Sar. Okay, who is Gaurav Shama? Okay, Gita Tattva Sar. और गीता आश्रय चिंतन, और कोई गीता आश्रय चिंतन के लिए? Sanya. Sanya is saying Gita. What name? Gita Ashray Chintan. Okay, Vrinda, can you share the Gita Ashray Chintan wins? So this is Gita Ashray Chintan is meditating and internalizing the instructions of Lord Krishna as given in Bhagavad Gita and taking the shelter of these instructions and our beloved spiritual master, His Holiness Bhakti Ashray Vaishnava Swami, to perfect our lives. Okay, you can stop this for now, Vrinda. It's just the name. I wanted to just share that we are not going to call it notes making. This is an idea which came from our most beloved Gaurav Prabhu just this afternoon, 1 hour back. Can we just call it Gita Ashray? So Maharaj Ji has given the name Gita Ashray Chintan. Chintan is very important in this. Meditating on this. तो अभी महाराज के ऊपर भी चिंतन करना है.
So, before we discuss deep about it, we should know what is this. So, we should start with our current practice of चिंतन. अभी हम कैसे चिंतन करते हैं? जो महाराज का लेक्चर होता है सुबह, every morning when we make the notes, or even beyond notes, if you could share what is the current practice of internalizing this entire verse that we hear from Maharaj Ji. Anyone who would like to share their experience on how we are internalizing, meditating on these verses? Anyone? No one? So maybe we are not following any process right now. Yes, Gaurav Prabhu? We're making notes, writing our application points. Application point. Sending on group. Okay. So practically, what are we going to apply? We are writing those, and we are writing what Maharaj Ji is teaching us. This is the usual practice. I mean, if we read the notes on the group also, we see that everybody makes wonderful notes, and some of you also write down what are the practical applications from the verse. So, how many of you feel that is helping us? And we go back to these notes. Very nice. कर रहा है हेल्प? लक्ष्य प्रभु को कर रहा है. लक्ष्य प्रभु, आप कैसे मेंटेन करते हैं ये? Regarding notes, Pruji, Yes, प्रभु जी. frankly, my notes making is very bad. So, I note down the points which I understand, and कुछ points जो मुझे लगता है जो अभी समझ नहीं आ रहा, maybe in future I will be able to correlate. Out of those points, I pick one point which I apply daily, because अगर कि daily गीता class होता है and there are n number of points which can apply, but it becomes difficult to apply all the points. So one point a day keeps me. Yes, yes. Very nice. Very nice. We have to be very practical in writing what transformation we can bring, because there can be so many transformations that we can be allured. So first of all, we should understand that the whole purpose of these morning classes is life transformation. How we can transform our lives, how we can create new sanskaras. हम लोग पुराने संस्कार लेकर के अपने साथ में आए, जैसे कि आज महाराज ने हमें बताया कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सब कुछ प्रकृति ही कर रही है. Everybody is bound by 3 modes of material nature. So कैसे हम लोग इन गुणों से धीरे धीरे ऊपर उठ सकें? How we can create this situation. So जैसे हम कोई भी मेडिसिन खाते हैं या मेडिसिन को ड्रिंक करते हैं, तो उसका पर्पस ये होता है कि हमारे अंदर जो डिजीज है उसको हम क्योर कर सकें. सो अगर उस मेडिसिन को हम, जैसे खांसी की दवाई है, ले करके और बाहर थ्रो कर देते हैं और ड्रिंक नहीं करते हैं, तो खांसी ठीक नहीं होगी. तो ऐसे ही अगर हम जो रोज लेक्चर सुनते हैं उसको अगर ड्रिंक नहीं करते हैं, इफ यू डोंट ड्रिंक देम, इट विल नॉट गो एंड मेक द cure the disease, the spiritual disease that we have. So this is the most powerful medicine that we are getting every morning from Maharaj Ji. तो इस मेडिसिन को ड्रिंक करना सीखना है. None of these scriptures are actually supposed to be just read or just heard. The real process is to hear them and drink them. So in this entire process, we are going to learn how to drink this knowledge, how to drink it and get it to our consciousness. So there is a process that we will follow to do that. Now, we can do that. There are 10 steps to it. There are 10 steps to it, and we are going to be going deep into every step. But before that, we need to understand what is really this whole process of drinking it. इसका core purpose क्या है और core इसका process क्या है? It's basically alignment. जैसे कि हमने His Grace रुक्मणी कृष्ण प्रभु जी की classes में सुना, how should we do or how could we do the perfect chanting? How can we do the chanting with deep absorption? That is done by aligning
किसी को याद है क्या चीजें अलाइन करना होता है इसके अंदर? 3 चीजों को हमें अलाइन करना होता है, अपने शरीर को, मन को, हृदय को। किसकी तरफ? भगवान के नाम की तरफ। अलाइनिंग द बॉडी, अलाइनिंग द माइंड एंड अलाइनिंग द हार्ट। इन तीनों को अलाइन करके जब भी हम कोई कार्य करेंगे तो हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अगर ये तीनों चीजें अलाइन नहीं होंगी, तो जैसे गाड़ी के अंदर कोई पार्ट्स अलाइन नहीं है तो गाड़ी नहीं चलेगी। इंजन से ही अलाइन नहीं है अगर, स्टीयरिंग व्हील तो, या टायर्स अलाइन नहीं है इंजन से, तो वो नहीं चलेगा। तो ये हमारा जो अभी हियरिंग प्रोसेस या एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है चैंटिंग का या फिर रीडिंग का या हियरिंग का, हो सकता है वो एक बेटर अलाइनमेंट मांग रहा हो। सो दिस प्रोसेस, दैट 10-step प्रोसेस इज डिजाइन टू अलाइन अस बेटर। माइंड से, बॉडी से हम क्या कर सकते हैं? जब हम नोट्स बनाते हैं तो बॉडी से हम लोग पहले हियरिंग कर सकते हैं नोट्स बनाने से पहले लेक्चर की, उसके बाद हम लोग अपने हाथों से लिख सकते हैं उसको। दिस इज दी वर्क ऑफ बॉडी। जैसे प्रभु जी कहते हैं कि जब हम चैंटिंग करते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं? एक तो कान से हियरिंग करते हैं और टंग से वी स्पीक, वी चैंट। तो ये 2 हमारे बॉडी पार्ट्स अलाइन होते हैं। ऐसे ही इसमें क्या होता है? कान से हम सुनते हैं और हाथ से हम नोट्स बनाते हैं। तो इससे हमारा बॉडी का फंक्शन होता है, ये फिजिकल ग्रॉस बॉडी का। उसके बाद हमें इसमें अपना माइंड अलाइन करना है। हाउ डू वी अलाइन द माइंड टू द लेक्चर? माइंड को कैसे अलाइन कर सकते हैं? कॉन्टेम्पलेट करके, उसके ऊपर डीपली कॉन्टेम्पलेट करके। इफ वी डोंट कॉन्टेम्पलेट ऑन दैट डीपली, देयर विल बी नो रियलाइजेशंस दैट विल कम। एंड Prabhupada ji says knowledge without realization is a waste of time. It's like, again, like licking the bottle of honey from outside and never tasted the honey. So it's very important to realize this. Some of you might say that realization is a very deep subject. Realization तो ऐसे आता ही नहीं है। किस किस को realization आता है जब हम deeply contemplate करते हैं? नहीं आता, किसी को नहीं आता? एनी या सारंग बताइए, क्या कैसे रियलाइजेशन आता है, क्या रियलाइज करते हो? प्रभु जी, आई वाज गोइंग टू से दैट कभी कभी आता है, बट कभी कभी रियलाइजेशन नहीं आता है। ऐसे मैं समझ जाता हूँ कि आज गीता डॉक्टर महाराज ने क्या बताया, बट नथिंग कम्स अप इन माय माइंड कि अच्छा, ओ ये इससे ले हुआ था, अब मैं समझा ये क्यों हो रहा है। ठीक है। तो जो कॉन्टेम्पलेशन होता है हमारा, वो माइंड में होता है। तो हमारा माइंड अलाइन होना चाहिए कॉन्टेम्पलेशन के थ्रू। और जो रियलाइजेशन होता है वो कहाँ होता है? हमारे हार्ट में होता है। रियलाइजेशन इज अ सिम्टम ऑफ सोल, इज अ सिम्टम ऑफ कॉन्शियसनेस। सो रियलाइजेशन जो होगा वो हार्ट में। हार्ट में कौन है? सोल है। हार्ट में क्या आज महाराज ने बताया था? रियल ईगो। हमारा रियल ईगो कहाँ है? हार्ट में है। सोल इज इन दी हार्ट। तो हमारा रियलाइजेशन, तो जब तक वो हार्ट से रियलाइजेशन और माइंड से कॉन्टेम्पलेशन और हाथ से लिखने का तीनों काम अलाइन नहीं होगा, तब तक हम लोग इस प्रोसेस से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं ला पाएंगे। वी विल नॉट बी इंस्पायर्ड इनफ टू ट्रांसफॉर्म अवर लाइफ, बिकॉज हार्ट से रियलाइज ही नहीं किया। रियलाइज क्यों नहीं किया? क्योंकि माइंड से कॉन्टेम्पलेट ही नहीं किया इनफ। कॉन्टेम्पलेट नहीं किया तो रियलाइजेशन नहीं आएगा, रियलाइजेशन नहीं आएगा तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा। So contemplation leads to realization and realization leads to transformation. अब ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग लिख तो लेते हैं, जैसे लक्ष्य प्रभु ने बोला हम लिखने को बहुत सारी लिख सकते हैं क्योंकि इतनी सारी ट्रांसफॉर्मेशन नजर आती है एक लेक्चर से। बट अब उनको ट्रैक कौन करेगा? देयर शुड बी समबडी हु इज ऑल्सो ट्रैकिंग आवर ट्रांसफॉर्मेशंस। देयर शुड बी समबडी हु इज एक्टिंग लाइक ए लाइफ कोच टू अस। सो ये सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे इसके अंदर। मैं आपको एक बार सिर्फ ब्रॉडली दिखा देता हूँ 10 स्टेप्स, फिर हम क्या करेंगे। आज एक लेक्चर महाराज का जो आज मॉर्निंग में लेक्चर था 3.27, उस लेक्चर को दोबारा सुनेंगे 20 मिनट्स के लिए और फिर उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं इन 10 पॉइंट्स को। अगर 10 नहीं हो पाएंगे तो कुछ पॉइंट्स को तो जरूर कर सकते हैं हम। तो वृंदा, कैन यू शो द स्क्रीन नाउ विद द PDF? Okay. So this is the first step, title. किसी भी लेक्चर को जब हम सुनते हैं तो हमें
उसको टाइटल देना होता है। टाइटल क्या होता है? दिस इज द टाइटल और हेडलाइंस। जैसे न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, हेडलाइन होती है किसी भी चीज की, या ऐसा कह सकते हैं जैसे एक बुक का एक नाम होता है, बुक का कवर होता है, कवर पेज के ऊपर उसका नाम लिखा होता है। भगवत गीता इज द टाइटल ऑफ द होल बुक। तो वैसे ही सबसे पहले हमें उस पर्टिकुलर वर्स को एक हेडलाइन देना चाहिए। It tells you at a glance what is this verse all about. For example, the title of Bhagavad Gita 2.47 could be the importance of detachment. Does that make sense? एक हेडिंग होना चाहिए। अब इसको बंद कर दो वृंदा, आई वांट टू सी एवरीबॉडी। यस, सो आप ऐसा सोचिए, कभी कोई हम बुक खोलते हैं, उसको हम पहले इंडेक्स में जाकर के चैप्टर्स देखते हैं। चैप्टर्स में क्या होता है? टाइटल होता है खाली। उस टाइटल को देख करके देन वी गो इनसाइड द चैप्टर। इमेजिन अ बुक विच हैज गॉट नो चैप्टर नंबर, नो टाइटल, कोई हेडिंग ही नहीं है। 300 पेज की बुक है, बस टेक्स्ट लिखा जा रहा है, टेक्स्ट 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 लिखा है पूरा उसके अंदर। तो ये बुक इंटरेस्टिंग होगी? कुछ समझ में आएगा क्या है इसका पर्पस, क्या है, क्या पढ़ना चाह रहे हैं हम? दिस विल नॉट गिव अ मैक्रो व्यू टू अस। या ऐसा सोचिए कि कोई, हम लाइब्रेरी में जाते हैं, किसी लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स रखी हैं, थाउजेंड्स ऑफ बुक्स रखी हैं, लेकिन किसी बुक के ऊपर नाम नहीं लिखा उसका। तो क्या हम डिसाइड कर सकते हैं कौन सी बुक हमें लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है? नहीं ले सकते। तो दिस इज अ वेरी स्मॉल थिंग बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम अ टाइटल। कोई न्यूज़पेपर पढ़ता है, अगर सोचे न्यूज़पेपर के अंदर कोई भी हेडिंग नहीं है, पूरे पे छोटे छोटे अक्षर लिखे हैं, पूरे न्यूज़पेपर 10 पेज का न्यूज़पेपर है, उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ मेन टेक्स्ट लिखा है, प्राइम मिनिस्टर शॉट डेड, लिखा ही नहीं कहीं पे भी। उन्हीं के अंदर प्राइम मिनिस्टर शॉट डेड भी हो गया, लेकिन कोई टाइटल नहीं है उसका। सो हाउ विल वी नो which article we have to read and which not? So it's very important that we should have a headline to every verse. तो जैसे आज का वर्स महाराज जी ने बताया 3.27, तो उसके ऊपर अभी हम उसको वर्स को सुनेंगे, महाराज के लेक्चर को पूरे को, उसके बाद उसका हेडलाइन लिखेंगे। सबका अपना अपना हेडलाइन हो सकता है, जो भी जिसको जो सही लगे, उसका जस्ट उसका की एसेंस क्या है उसका। तो दिस इज द टाइटल। यस वृंदा, यू कैन कम बैक। दूसरा है सब टाइटल। सब टाइटल क्या होगा? द सब टाइटल इज अ कंसाइज समरी ऑफ द मेन मैसेज और द एसेंस ऑफ द वर्स। इट्स अ कंसाइज समरी। एग्जांपल, द सब टाइटल ऑफ वर्स 2.47 could be, we must perform our prescribed duties without being attached to the result of our actions. एक सेंटेंस के अंदर उसको कंसाइज, उसका क्रक्स, जैसे हम लोग पहले क्लासेस करते थे, मैं सब बच्चों से ये पूछता था कि what is your key takeaway from this? That is the subtitle, that is a concise summary of that. So हमारा माइंड मैक्रो से माइक्रो पे वर्क करता है। पहले उसको हेडलाइंस चाहिए होता है, हेडलाइंस के बाद उसके बाद सब हेडलाइंस चाहिए होता है, सब टाइटल। उसके बाद उसके नीचे उसकी डीप समरी चाहिए होती है, उसके प्रॉपर नोट्स चाहिए होते हैं। सो इसको हम इफ एनीबडी रीड्स द न्यूज़पेपर, हमने उसमें भी देखा होगा कि एक हेडलाइन के बाद कई बार नीचे उसकी एक या कैनवा कौन यूज करता है? कैनवा में देखो ना, एक हेडिंग होती है, एक सब हेडिंग होती है, फिर नीचे उसके बाद टेक्स्ट आता है। तो वैसे ही सेम वे वी कैन यूज दिस एज अ सब हेडिंग। तो दिस विल गिव अ मोर क्लियर जेस्ट टू अस कि हम लोग का जो आज का वर्स था उसमें what are we expecting inside this verse. Next, notes. Step 3 is notes. Now we make the proper notes. This section contains a verse's explanation in its original form as explained by Maharaj Ji. ये वाला पार्ट हम सब लोग करते हैं। However, this would be written in the form of an article in a spiritual magazine. अब इसको बंद कर सकते हैं वृंदा जी। यस, ये जो पॉइंट नंबर 3 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग कैसे लिखते हैं, कई बार सब पॉइंट बाय पॉइंट लिख देते हैं, जो महाराज जी ने बोला, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, वी कैन राइट डाउन दैट पॉइंट बाय पॉइंट, दैट इज ऑल्सो गुड, दैट्स नॉट रॉन्ग, बट how can we write it in such a way that this becomes actually
मैगजीन फॉर आवर ओन मैगजीन, इवेंचुअली वी कैन प्रिंट इट। हर एक वर्ड्स को हम ऐसा कैसे लिखें कि उसको इतना क्लैरिटी से लिखें हम, जैसे कि हमने एक स्पिरिचुअल मैगजीन में एक आर्टिकल लिखना है इसके ऊपर, वही सब कुछ कवर करते हुए जो महाराज जी ने बताया। लेकिन जब महाराज जी कोई बात बोल रहे होते हैं तो महाराज जी ने लेट से कोई 4 एग्जाम्पल्स दिए हैं एक ही बात के ऊपर। पहला एग्जाम्पल महाराज जी ने लेक्चर के शुरुआत में दे दिया, दूसरा एग्जाम्पल महाराज जी ने उसी बात के ऊपर मिड में दिया होगा, तीसरा एग्जाम्पल होता है महाराज जी ने बिल्कुल लास्ट में दिया होगा, लेकिन वो एक ही बात को प्रूव कर रहा है। तो हो सकता है कि हम जब एक आर्टिकल की तरह लिखेंगे तो उसके अंदर तीनों एग्जाम्पल एक साथ में दे दें हम लोग, एग्जाम्पल 1 दिस, तो इसी बात को इम्पैक्ट डालने के लिए। तो राइटिंग द नोट्स एज इफ यू आर राइटिंग आर्टिकल इन अ मैगजीन इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम जस्ट, जैसे महाराज जी भी कहते हैं कि मैं देखता हूँ नोट्स ऐसे आते हैं जो मैंने बोला बस एज इट इज वो उतार दिया। तो इट्स इंपॉर्टेंट टू स्टे एज इट इज, बट it's also important that we use our own intelligence and our own version of that as it is, कि उसको इतना ब्यूटीफुली क्राफ्ट किया जाए कि when anybody reads it, it is absolutely clear to him। ठीक है, तो इसको एक मैगजीन आर्टिकल की तरह हम कैसे लिखें। I hope so far everything is clear and not too heavy. Does that make sense? Okay, so Vrinda ji, next point is महाराज जी जब अपने लेक्चर के अंदर इतनी अमेजिंग वर्ड्स यूज करते हैं, हर रोज कितने सारे वर्ड्स हमें सीखने को मिलते हैं, हमें अपनी स्पिरिचुअल वोकैबुलरी कैसे बढ़ा सकते हैं। Here you may list any new or special words introduced in the verse, आपको वर्ड से भी मिल सकता है वो, हम श्लोक जो पढ़ते हैं श्लोक के अंदर भी एक अच्छा नया वर्ड मिल सकता है। और एज टोल्ड बाय महाराज जी के तो रोज 3-4 वर्ड्स हम लोग सीख सकते हैं। दिस विल बिल्ड द स्पिरिचुअल वोकैबुलरी फॉर आवर बेटर अंडरस्टैंडिंग। स्पिरिचुअल वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है बिल्ड होनी। तो ये जो वर्ड्स हैं ये ऐसे होते हैं स्पिरिचुअल वोकैबुलरी के, जैसे कि एक बहुत बड़े ग्रैंड मैंशन के अंदर एक ताला की चाबी होती है ना, चाबी से ताला खोल दिया। So each and every word could be like a key to open a grand mansion. इतना important हो सकता है। It gives such a deep insight of the same same verse. Each word is so important. तो ये एक स्पिरिचुअल वोकैबुलरी बनाना चाहिए हमें। 4th स्टेप में हमें लिख लिया कि okay, we can close it now. Somebody has raised the hand, it seems. Yes, Surekha Mataji. हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी जो हमने पॉइंट नंबर 2 लिखा है टू गिव द सबटाइटल, दैट मींस हमने उसमें क्रक्स देना है, राइट? यस माताजी, बिल्कुल। एंड द थर्ड वन इज नोट्स, एंड यू आर सेइंग we should write it as an article, not word to word चिपका दिया जो महाराज जी ने बोला। यस माताजी। So what is the difference बैक टू between गॉडेड second मैगजीन, and third? बैक टू गॉडेड मैगजीन पढ़ेंगे ना हम, बैक टू गॉडेड स्पिरिचुअल मैगजीन, तो उसमें ऐसे ही होता है, ऊपर एक टाइटल होता है, फिर एक सब टाइटल होता है, फिर पूरा आर्टिकल होता है। Okay. That means जो हमने क्रक्स लिखा है उसी को ही then we are going to explain. Yes, Right. yes. उसी का डीप एक्सप्लेनेशन, like keeping all the examples and keeping all the explanation of Maharajis only. Yes, right. इसी को प्रॉपरली एक जर्नलिस्ट की तरह लिखना हमने। Hmm. How a journalist will write it like that. So that process will also help us in our writing skills also, and also it will help us to clear our mind on that. तो हम जल्दबाजी में नहीं कर सकते वो कार्य। जब हमें एक कार्य को एक आर्टिकल की तरह लिखना है तो हम जल्दी से बस एज इट इज कॉपी करके उसको फॉरवर्ड नहीं करेंगे। विल हैव टू कॉन्टेम्पलेट लिटिल बिट ऑन दैट। प्लस ये सारे नोट्स जो हम बना रहे हैं, ये सारे नोट्स एक नए सॉफ्टवेयर पे बनेंगे, नोशन के ऊपर। वृंदा विल इंट्रोड्यूस दैट टू एवरीबॉडी एंड एवरीबॉडी विल लर्न हाउ टू मेक नोट्स इन दैट। सो ये सारे नोट्स इन सभी क्राइटेरियाज के ऊपर सबके एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे। एवरीबॉडी इज नोट्स ऑन ईच 10 पॉइंट्स। तो जैसे हेडिंग की बात कर रहे हैं हम, तो सबकी हेडिंग
सुरेखा माता जी ने हेडिंग ये दिया, विनोद जी ने हेडिंग ये दिया, गौरव प्रभु ने हेडिंग ये दिया, लक्ष्य प्रभु ने हेडिंग ये दिया, सबके हेडिंग्स आ जाएंगे। सोचिए, सबके सब हेडिंग्स आ जाएंगे, सबके नोट्स आ जाएंगे उसके अंदर, एक ही जगह पे सब इकट्ठे हो जाएंगे। और सभी के, तो इमेजिन इतना बड़ा डेटा बैंक बन जाएगा ये, और सभी की अपनी अपनी स्पिरिचुअल कंटेंट खड़ा हो गया, उसका पूरा पूरा जो आर्टिकल बनाया सबने उस वर्ष का, वो आर्टिकल भी वहां पे इकट्ठा हो गया। तो इस सबको हम एक दूसरे को भी रिवाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हाँ इसने कैसे इसको कंसीव किया, मैंने कैसे किया। कभी हम बीच में क्लास भी कर सकते हैं किसी एक वर्ष के ऊपर। तो एक ही वर्ष के ऊपर सोचिए 30-40 कॉन्टेम्पलेशन हमारे पास इकट्ठा हो गया, एंड दैट टू ऑन वन प्लेटफॉर्म। सो इट विल रियली हेल्प अस। प्लस जिसको अपना अपना वर्ष को लेकर के भी बाद में कंपाइल करना है और कंपाइल करके एक बुक बनाना है, तो बुक बना सकते हैं। इट विल हेल्प अस इन प्रीचिंग। So this, all of this that we are doing now, why to waste it? एक बार हमने WhatsApp में भेज दिया, उसके बाद भूल गए। Why not to actually use it for our life? This is our biggest asset of our life. सबसे बड़ी संपत्ति इकट्ठी हो रही है हमारी है। महाराज जी के मुखारविंद से सुन करके, उसके ऊपर इतना अच्छा आत्मचिंतन करके, उसके नोट्स बना के, मैगजीन काइंड नोट्स बना करके, वो इकट्ठे होकर के एक सॉफ्टवेयर पे इकट्ठा हो गया। इकट्ठा होकर के जिस दिन उसको प्रिंट करना चाहे प्रिंट कर सकते हैं, तो बुक बन जाएगी। तो ईच वन ऑफ यू कैन हैव दिस कंपाइल्ड बुक ऑन ईच वर्स ऑफ भगवद गीता। सो दिस कैन बी यूज्ड इन प्रीचिंग टू डिफरेंट एज ग्रुप्स। आपका जो एक एज ग्रुप का जो लेट्स से कॉन्टेम्पलेशंस आएगा या जो आर्टिकल बनेगा, वो अलग हो सकता है, और एक एज ग्रुप का अलग हो सकता है। दिस कैन बी यूज्ड इवेंचुअली फॉर डिफरेंट एज ग्रुप्स, all those books. So next point, अच्छा गौरव प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, नोट्स जो है आपने बोला आर्टिकल फॉर्म में लिखने के लिए, अभी जो हम करेंटली करते हैं या मैं जैसे करता हूँ, वो पॉइंटर वाइज होता है पॉइंट्स में। तो पॉइंट में ऐसा लगता है कि बाद में वो उसको रिफ्लेक्ट करना थोड़ा इजी होगा, पॉइंट में सब पॉइंट बना देना, फिर पॉइंट्स की भी एक अलग से हेडिंग बना देना, तो थोड़ा सॉर्टेड लगता है ज्यादा उसमें। तो आप जब नोट्स बनाएंगे, उसमें कुछ की पॉइंट्स को बोल्ड कर सकते हैं, उसी के अंदर बोल्ड कर सकते हैं, ताकि आप उसमें एंटर कर सकें उसके अंदर, उस पॉइंट के ऊपर। लेकिन अगर सिर्फ पॉइंट्स में लिखेंगे, तो वो एक आपके लिए तो ठीक है, लेकिन इट कैन नॉट बी यूज लेटर। और महाराज जी कहते हैं कि जिस टाइम हम लेक्चर सुन रहे होते हैं ना, उस टाइम पे हमें की पॉइंटर्स लिखने चाहिए पेन पेंसिल से। उस टाइम हम की पॉइंटर्स लिख लें। दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट यू कैन कीप विद यू एज वन काइंड ऑफ नोट्स। बट ये वाला जो हमारा प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज नॉट जस्ट नोट्स मेकिंग, दिस इज अ प्रोसेस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। तो इसमें हमें डिटेल में जाना होगा। जब तक हम डिटेल में नहीं जाएंगे, तब तक रियलाइजेशंस नहीं आएंगी। यस इश। आई हैव अ क्वेश्चन। मैं अभी पॉइंटर्स में क्या होता है, एक स्टार्टिंग और एक एंडिंग मिल जाती है किसी भी टॉपिक की, वेयर इट स्टार्टेड एंड वेयर इट्स एंडेड। बट आर्टिकल फॉर्म में वो एक आर्टिकल में स्टार्टिंग और एंडिंग नहीं होगी, वो एक पैराग्राफ चल रहा होगा। हाँ, पैराग्राफ में ही होना चाहिए। और अगर ये लगता है कि ये भी यूजफुल है, पॉइंटर्स भी, यू कैन मेक पैरेलली द पॉइंटर्स आल्सो फॉर योरसेल्फ। राधिका वाज रेजिंग हैंड। प्रभु जी, यही था इस प्रभु का जो क्वेश्चन था, वही था सही। प्रभु जी, आई फील लाइक अगर हम पॉइंटर्स बना लें और उसके बाद एज अ कंपाइलेशन ऑफ ऑल आवर नोट्स वी कैन मेक दिस इनटू एन आर्टिकल फॉर्मेट, सो विल दैट बी हेल्पफुल? बिकॉज उस टाइम पे वी डोंट हैव that capability to also hear the lecture and make up you don't have to anyway do all of this during the lecture. All this process will happen during the day and not during the time of lecture. lecture के टाइम पे आप आर्टिकल कैसे लिख सकते हैं लेक्चर सुनते समय? वो तो हो ही नहीं सकता। उस टाइम पे तो आपको नोट्स, हेडिंग्स और पॉइंटर्स ही इकट्ठे करने हैं खाली। उसके बाद दिन में दोबारा पूरा लेक्चर सुनते हुए उसके बाद ये सारा काम करना है। यस गौरव प्रभु। तो यहाँ पे बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं, वो लेक्चर सुनते सुनते पूरा आर्टिकल और आर्टिकल पे 2-3 सब आर्टिकल्स भी लिख सकते हैं। यस, दैट्स बहुत फास्ट टाइप करते हैं मोबाइल पे।
एक्चुअली वो पॉइंट था, आई थिंक इफ आई एम अंडरस्टैंडिंग इट करेक्टली, आपका जो पर्पस है ये बोल रहे हैं कि हम बाद में उसका एक आर्टिकल फॉर्म लिखें कि हमारे माइंड में वो थॉट्स हैं वो बहुत ही ऑर्गेनाइज फॉर्म में इंस्टॉल हो जाएं ब्रेन में, और हम उसको फिर किसी को बताएं लेक्चर के टाइम पे तो हम उसको वैसे ही एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें। बहुत जरूरी है उसको ऑर्गेनाइज फॉर्म में माइंड में प्लेस करना। मेंटल लाइब्रेरी जो हमारी होती है वो अनऑर्गेनाइज्ड, अगर अभी से हम पॉइंट करने शॉर्ट, ये वी आर इन एक्चुअली अ फास्ट स्टेज, सब चीजें पॉइंट्स में, सब चीजें क्विकली सामने आनी चाहिए, लेकिन हमारे पास पेशेंस चाहिए कि हम उसके अंदर डीपली कैसे जाएं उस बात को, जब क्योंकि उसके ऊपर आर्टिकल लिखने के लिए टाइम लगाना पड़ेगा, तो टाइम लगाने के लिए पेशेंस चाहिए। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स, 5 पॉइंट हुए अभी तो ये। नेक्स्ट पॉइंट है, वो सब लिखने के बाद वोकैबुलरी हो गया, पूरा आर्टिकल हो गया। नेक्स्ट पॉइंट इज इंस्ट्रक्शन। दिस सेक्शन आउटलाइंस द गाइडेंस और एन इंस्ट्रक्शन यू डिराइव फ्रॉम द वर्स एज इफ लॉर्ड कृष्णा इज प्रोवाइडिंग द स्पेसिफिक एडवाइस टू यू थ्रू दिस वर्स। बंद कर दीजिए इसको फिर से। सो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि व्हाट इज दिस भगवत गीता। भगवत गीता को हम बोलते हैं दिस इज एन इंस्ट्रक्शन मैनुअल। इंस्ट्रक्शन मैनुअल किसके लिए थी? ये सूर्यदेव के लिए थी, अर्जुन के लिए थी, ऐसा नहीं है। जब भगवान ने विवस्वान को बताया था तो किसके लिए बताया था? विवस्वान के लिए बताया था? नहीं, उनके सिटीजन्स के लिए, हाउ द सिविलाइजेशन शुड मूव एट दैट टाइम। और जब ये लुप्त हो गई थी तो दोबारा से भगवान ने किसको बताया? अर्जुन को बताया। अर्जुन को, अर्जुन के लिए नहीं, नेक्स्ट जनरेशंस टू कम, हमारे लिए बताया था। तो व्हाई डू वी ऑलवेज थिंक कि ये बात का ये मतलब है, ऐसा हो गया, हमें बाहर से निकाल देते हैं बात को, अंदर तो लाते ही नहीं। इट वॉज बिटवीन कृष्णा एंड अर्जुना, बस। जैसे कोई हम मूवी देखते हैं ना, ऐसा कोई स्टोरी पढ़ते हैं, ऐसा ऐसे स्टोरी की तरह पढ़ लेते हैं, ऐसा हुआ था, ऐसा बोला था। नो, this is the main problem in the style of understanding Bhagavad Gita. We are not directing the verses towards us. We are directing the Krishna's verses towards Arjuna. ऐसा बोला गया, डिटैच रहना, बियॉन्ड विक्ट्री एंड सक्सेस जस्ट फाइट। ओके, ये ऐसा बोला गया था, जस्ट फाइट। मतलब इट वाज नॉट नथिंग टू डू विद अस। हम कोई थ्योरी पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा, मतलब उन दोनों के बीच में कुछ संवाद चल रहा है एक। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। हम लोग अपने साथ में उसको रिलेट ही नहीं कर रहे, उस इंस्ट्रक्शन को। हम ऐसा मान ही नहीं रहे कि ये इंस्ट्रक्शन मेरे लिए है। तो वो कैसे होगा? ये जब होगा जब हमारा लिखने का स्टाइल चेंज होगा। कैसे लिखा जाएगा? ऐसा लिखा जाएगा, लॉर्ड कृष्णा टेल्स मी, ओ श्यामा, ओ अर्जुना नहीं, ओ श्यामा, ओ राध्या, यू हैव टू डू लाइक दिस। Write it like this, as if Krishna is talking to you with your name and not Arjuna's name. वो पार्थ नहीं बोल रहे, वो राधा बोल रहे हैं, राधिका बोल रहे हैं, वो लक्ष्य बोल रहे हैं, वो निपुण बोल रहे हैं। ऐसे लिखना है उसको, अपना नाम लिख करके उसको लिखना चाहिए कि हे पार्थ निपुण, तुम्हारे लिए इंस्ट्रक्शन है मेरी कि जो भी मैं कार्य करूंगा आज ऑफिस जा करके, उससे मैं डिटैच होकर के करूंगा। मुझे कार्य करना है और मेरा उसके रिजल्ट के ऊपर कोई अधिकार ही नहीं है। ये मेरे को इंस्ट्रक्शन मिली है लॉर्ड कृष्णा से आज मेरे ऑफिस में जाने के लिए, युद्ध लड़ने के लिए अर्जुन को नहीं मिली। दिस इज द इंस्ट्रक्शन टू मी फॉर माई टूडेज डे टाइम, कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम लॉर्ड थ्रू अवर गुरुदेव फॉर मी। Does that make sense? जब तक हम इन शब्दों को, इन वर्सेस को बाहर की बाहर देखते रहेंगे और इस तरीके से तैयार करते रहेंगे, कल किसी को बताएंगे कि हमने क्या सीखा। कल बताएंगे कि कृष्ण ने अर्जुन को क्या बोला था। ये ऐसे नहीं सीखना हमने सिर्फ अपने और कृष्ण के बीच में इंस्ट्रक्शन को रखना है कि दिस इज द इंस्ट्रक्शन फॉर मी बाय कृष्णा एंड अर्जुन इज ओनली द मीडियम। Maharaj Ji is the medium. It is for me. It is coming through Arjun, through Maharaj Ji, but
Who is it for? For me. So this is very, very important thing that we understand. These are instructions for our daily lifestyle. रोज उठ करके इनको कैसे अपनाना है. We have to own this instruction. We cannot disown it. हम ये नहीं कह सकते कि भगवान का कुछ भी दिया हुआ हम ओन कर सकते हैं, उसमें कुछ बुराई नहीं है. भगवान के शब्दों का हम ओन कर सकते हैं, उनका हमारे लिए ओन करने के लिए ही है वो, उसकी ओनरशिप अच्छी ओनरशिप है. So we have to own it. This is instruction for me. So this is the 5th point. 6th point. 6th point is a realization. अब यहाँ पर आकर के हमें realization होगी. Realizations are the personal insights or the revelations that we gain through deep contemplation of the verse in the context of your life. हमें वो realization अपनी life के context में लेके आनी है. जैसे कि it could involve recognizing certain traits or behaviors in yourself. आप बंद कर सकते हैं. So what is this realizations? Realization किसको बोलते हैं हम? Yes, सुरेखा माता जी. प्रभु जी, मैंने तो डाउट के लिए हैंड उठाया था. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. प्रभु जी, I was thinking instruction and realization same नहीं हो गया, क्योंकि what we are realizing that we will think that it is the instruction for me. हाँ माता जी, इसमें क्या फर्क है? इंस्ट्रक्शन, फॉर एग्जाम्पल, भगवान ने एक इंस्ट्रक्शन दिया कि जैसे हम ये बात कर रहे थे, डोंट बी अटैच्ड टू द रिजल्ट्स, यू डोंट हैव एनी राइट्स ऑन द रिजल्ट्स. ये तो इंस्ट्रक्शन. मेरे को रियलाइजेशन क्या हो सकता है? जब हम डीपली कॉन्टेम्पलेट करेंगे इसके ऊपर, तो हमें अपनी वीकनेस समझ में आएंगी कि आई एम ऑलवेज फोकस्ड ऑन द रिजल्ट्स. This is a realization. When you go deep and deeply contemplate करेंगे, in that situation also, I fought with that person because I was always looking at to control the situation. I was always looking at, I was never surrendered. So that is realization. तो instruction कुछ और थी, लेकिन जब हम deeply contemplate करेंगे तो हमें अपनी, I am a pretender, I am always pretending, I am saying something and I am doing something. This is a realization. This is not a instruction. Instruction से realization निकलेगी कि हाँ, इस context में अगर मैं इसको deeply contemplate करूँ इस instruction को, तो what is when we deeply contemplate, realizations will just start to spring up. अपने आप आने लगेंगी. Anybody else about realizations? Yes, Gaurav Sharma raised hand. हरे कृष्णा प्रभु जी. प्रभु जी, मेरा एक प्रीवियसली एक डाउट था. वो ये था प्रभु जी कि जब हम महाराज के नोट्स बनाते हैं ऑन द स्पॉट लेक्चर सुनते हुए, तो वी आर यूजुअली हम सिर्फ एक ट्रांसक्रिप्ट लिख रहे होते हैं महाराज के लेक्चर की. मतलब एज इट इज जो महाराज बोल रहे होते हैं, वर्ड टू वर्ड एज इट इज ट्रांसक्रिप्ट कर रहे होते हैं उसको. और अभी एकदम से जैसे आपने बताया कि आर्टिकल फॉर्म में उसको लिखना है और फिर उसके नीचे रियलाइजेशन भी होगा. तो मतलब प्रभु जी, उसमें हमें जो हम ट्रांसक्रिप्ट फिर हमें करना है जब हम नोट्स बना रहे हैं, या फिर सिर्फ पॉइंटर्स बनाने के बाद हमें आर्टिकुलेट करके अपने वर्ड्स में उसको आर्टिकल बनाना है और फिर रियलाइजेशन भी लिखना है? महाराज जी ये कहते हैं कि जिस टाइम महाराज लेक्चर दे रहे होते हैं, उस टाइम पे किसी को फोन पे कोई कुछ नहीं लिखना चाहिए. उस टाइम पर सिर्फ नोटबुक होनी चाहिए और उस टाइम पे की पॉइंट्स नोट कर लो बस. उस टाइम पे एज इट इज ट्रांसक्रिप्ट नहीं करना चाहिए हमको. उस टाइम पे बस की पॉइंट्स नोट कर लो. जैसे गौरव बाबू कहते हैं वो की पॉइंट नोट करते हैं, या कह रहा की पॉइंट, तो या राधिका, की पॉइंट्स उस टाइम पे नोट करने चाहिए हमको, ताकि हमारा ध्यान सुनने पे रहे. वी कैन नॉट राइट एवरीथिंग एंड अंडरस्टैंड इट. हम फॉलो तो कर सकते हैं, जो महाराज ने बोला वो लिख देंगे, लेकिन उसको डीपली अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे अगर हम लिखने में पूरा फोकस लगाएंगे. तो की पॉइंट्स लिख सकते हैं उस टाइम पर, और बाद में उस लेक्चर को दोबारा सुन करके देन वी शुड गो थ्रू दिस इंटायर प्रोसेस. देखिए, हमने पूरी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के अंदर एक भगवत गीता का एक श्लोक रखा है बस, अब रोज का, बाकी सब कुछ हटा दिया. बाकी कोई 8 घंटे की कोई क्लासेस नहीं होंगी, 4 घंटे की नहीं होंगी, 2 घंटे की नहीं होंगी, सिर्फ आधा घंटे की महाराज की क्लास बस. एवरीथिंग एल्स इज नाउ पुश्ड फॉर 3 years later. 3 साल बाद करेंगे बाकी सब चीजें. लेकिन अगर एक एक श्लोक के ऊपर हमने
डीप डाउन, माइल डीप चले गए एक एक श्लोक के ऊपर इस तरीके से, तो वी विल बी प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट लर्निंग्स। अदरवाइज ये सारा हम लोग इंटेलेक्चुअली तो समझ लेंगे लेकिन कॉन्शियसनेस को टच भी नहीं कर पाएगा। इट वी विल बी, वो अमरेंद्र प्रभु कहते हैं ना कि वी आर PhD एट द माइंड एंड वी आर एट किंडरगार्टन इन अवर हार्ट। तो यहाँ तक नहीं पहुंचेगा, यहीं तक रह जाएगा। तो हमें सब श्लोक भी रट जाएंगे, हमें सब पता लगेगा 2.47 क्या, 48 क्या है, 18.68 में भगवान ने क्या कहा है, सब पता रहेगा, लेकिन वो सिर्फ लोगों को बताने के लिए पता रहेगा। हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशंस नहीं आ पाएंगे, उसको हम टेस्ट नहीं कर पाएंगे, रिलिश नहीं कर पाएंगे। फियरलेसनेस जो आनी चाहिए, भगवान अगर गॉड कॉन्शियसनेस आती है तो फियरलेसनेस आनी चाहिए, तो फियरलेसनेस नहीं होंगे, डर रहेंगे हमेशा, क्योंकि उसका टेस्ट नहीं आया। तो इस प्रोसेस से हम लोग रियलाइज जब कर लेंगे उस चीज को, दैट रियलाइजेशन इटसेल्फ मीन्स दैट व्हाट इज सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइज व्यक्ति कौन होता है वृंदा, क्या बोलते हैं उसको? सेल्फ रियलाइज आत्म साक्षात्कार जिसने कर लिया। जिसने आत्म साक्षात्कार का मतलब क्या हुआ? अपने आप को अच्छे से पहचान, साक्षात्कार का क्या मतलब हुआ? साक्षात अपने आमने सामने आ गया, पता हाँ, चल गया कि मैं actually साक्षात दर्शन कर लिए उसके। साक्षात्कार का साक्षात दर्शन कर लिए किसके? आत्मा के, यानी कि उसने रियलाइज कर लिया, रिवील कर लिया, उसको रिवील हो गया आई एम ए सोल, राइट। ऐसे ही ये नॉलेज का, इस ज्ञान का साक्षात्कार होना, रियलाइजेशन का मतलब है इस ज्ञान का साक्षात्कार हो जाना। ये जो ज्ञान है ये रियलाइज हो जाना, मतलब इस ज्ञान का साक्षात दर्शन कर लेना। जो बात बोली जा रही है उस बात का साक्षात दर्शन हो जाना, जैसे हमारे सामने खड़ी है वो बात, यानी कि हमें रिजल्ट से अटैच नहीं होना है, इस बात का साक्षात दर्शन हो जाना। दैट इज रियलाइजेशन ऑफ 2.47. So that is point number 6. Point number 7 is visual of the verse. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हमारा माइंड किसमें, पिक्चर्स में काम करता है। दिस इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग द मेंटल इमेजेस दैट हेल्प यू रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड द वर्ड्स बेटर. It's based on the fact that our memory often functions through pictures. अभी कुछ सालों पहले, 2 साल पहले जब हम बच्चों को भगवत गीता पढ़ाते थे, तो ये 2-4 बच्चे थे उस टाइम पे, वृंदा, राध्या और जानवी, तो एक एक वर्स के ऊपर ये पिक्चर्स बनानी होती थी इनको। जैसे अभी जैसे एग्जाम्पल के तौर पे राजा जनक का एग्जाम्पल आया अभी एक वर्स में 3.14 में शायद, कि सोसाइटी के लिए एग्जाम्पल सेट करने के लिए वी हैव टू परफॉर्म आवर प्रिस्क्राइब ड्यूटीज, राइट। और उसमें राज ऋषि जनक जी का एग्जाम्पल आता है। तो अब ये एग्जाम्पल चला जाएगा, हम भूल जाएंगे, लेकिन इसका कोई पिक्टोरियल फॉर्म अगर हम बना के रखते हैं अपने पास में, पिक्टोरियल फॉर्म, तो हमेशा याद रहेगा। इसका क्या पिक्टोरियल फॉर्म बन सकता है? एनीबडी हु वुड लाइक टू इमेजिन अ पिक्चर ऑफ दिस सिचुएशन, doing the prescribed duties perfectly and yet we rishi from inside. Yes, Muskan. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. Prabhuji, can Maharaj Janak is doing जो राज्य का काम है वो भी देख रहे हैं, but like we can depict कि माइंड से एक जाता हुआ ऐसे मैसेज बना दिया कि जिसमें वो मतलब कंटिन्यूअसली भगवान को ही कंटेम्पलेट कर रहे हैं या भगवान को ही रिमेम्बर कर रहे हैं। Yes, परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। ऐसा दिखा सकते हैं, एक राजगद्दी में बैठे हुए ऐसे करके फिंगर भी पॉइंट कर रहे हैं, वो किसी को दंड दे रहे हैं जैसे, और एट द सेम टाइम माइंड उनका स्माइल कर रहा है भगवान के, उसके अंदर पूरी तरह से हृदय के अंदर भगवान है, माइंड में भगवान है, हृदय में भगवान है, लेकिन ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। मुख के ऊपर उनका गुस्सा क्रोध दिख रहा है, लेकिन अंदर हार्ट में वो खुश हैं, कोई क्रोध नहीं है। तो इस तरह से हमें इस पिक्चर से हमें एक इंस्पिरेशन मिलेगा कि ऐसी प्रवृत्ति में हमें रहना है, पिक्चर फॉर्म में कन्वर्ट करना है अपने नोट्स को। जैसे 18.68 में भगवान कहते हैं कि
प्रीच करो। तो प्रीच करने के लिए एक पिक्चर बनाई थी पहले बच्चों ने। वृंदा, याद है एक पिक्चर बनाई थी आप लोगों ने, बोट वाली? बोट, हाँ, क्या दिखाया था उसमें? उसमें था कि बोट डेड सी के ऊपर चल रही है और इस डेड सी में बहुत सारे लिविंग एंटिटीज ड्राउन हो रहे हैं और वो भक्ति की बोट है और उसमें हमें सबको लेके आना है और उसके हेड पे महाराज हैं जो उस बोट को चला रहे हैं। यस। सो आप इमेजिन कीजिए एक बोट है, उस बोट में संकीर्तन चल रहा है और महाराज जी बीच में है, सबको कीर्तन करा रहे हैं और उस बोट के आसपास में बहुत सारे लोग डूब रहे हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना हाथ बटा करके उनको बोट में लाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब ये पिक्चर फ्रेम हो जाती है। दिस इज प्रीचिंग। बेसिकली द होल वर्ल्ड इज ड्राउनिंग राइट नाउ इन द डेड सी, लेकिन एक बोट है, संकीर्तन आंदोलन की एक बोट है जिसके अंदर हमारे गुरुदेव हमें बचा के रखे हुए हैं और हम बचे हुए हैं। तो हमें किस तरह से दूसरों को बचा के इस बोट में खींचना है, ऐसी एक पिक्चर। अब आप सोचिए 30 जने, जब 30 बच्चे और 30 बड़े ऐसी पिक्चर्स बनाएंगे एक एक वर्ष की, तो कितनी 50-60 पिक्चर्स इकट्ठी हो जाएंगी, कितनी अमेजिंग कलेक्शन बन जाएंगी एक एक वर्ष के ऊपर। सबका अपना अपना अलग अलग इंटरप्रिटेशन होगा एक ही बात को लेकर के। एंड इट माइट लुक वेरी डिफिकल्ट, अरे ये तो गए 2 घंटे एसी के अंदर। गोपी सोच रही है आधा दिन तो इसी में निकल जाएगा, कितने पॉइंट्स बना दिए। You will see, it will become very easy. It will take time initially, but it will become very natural. To contemplate will become the property of the mind. वो एकदम contemplate करने लगेगा। To realize will become the property of the heart. To make the picture will also become, imagination will immediately increase. ये सारे बॉडी पे काम करेंगी ये चीजें। इमेजिनेशन इंक्रीज हो जाएगी, कॉन्टेम्पलेशन डीपर हो जाएंगी, रियलाइजेशन डीप हो जाएंगी, ये सब होना शुरू हो जाएगा। वी विल इवॉल्व एज वेरी डीप, जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं रबड़ी बन जाएंगे हम लोग दूध से। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ डूइंग दैट। देन eighth point is transformations. Transformations are the actionable steps you can take based on the preachings or teachings of the verse. These actions should be practical and applicable to your life. हम कोई बहुत बड़े बड़े ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन ना लिख लें जो हम कर ही नहीं सकते। बहुत आइडियल तो हैं लेकिन हम कर नहीं सकते। इट्स बेटर, जैसे लक्ष्य प्रभु ने कहा है, जो हम प्रैक्टिकली कर सकते हैं वो चीजें लिख लें। 1 पॉइंट 2 पॉइंट कि इससे मैंने ये सीखा कि अब मुझे, लेकिन ये ना, ये फिलोसफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस आर नेवर फिलोसफिकल। ट्रांसफॉर्मेशन शुड बी एक्शनेबल, कि आज रात को सोने से पहले ये करना शुरू कर देंगे हम, ये है ट्रांसफॉर्मेशन। कल सुबह इतने बजे उठ के ये करना शुरू कर देंगे, ये कल से मैं सुबह उठ करके शरणागति बुक महाराज की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर मेडिटेट करना शुरू करेंगे। दिस इज अ ट्रांसफॉर्मेशन। एनीथिंग विच इज एक्शन इज अ ट्रांसफॉर्मेशन। उसमें ऐसा नहीं लिखना कि ऐसा होना चाहिए। मैं आज से अपने रूटीन में क्या करूंगा, वो ट्रांसफॉर्मेशन है। यस गोपी। जी, ट्रांसफॉर्मेशन से ये समझ आता है कि वी आर बिल्डिंग अ न्यू हैबिट, बट व्हाट आई थिंक इज कि एक जो हमारी एक ट्रांसफॉर्मेशन है उसको अगर हम थोड़ा टाइम नहीं देंगे और नेक्स्ट डे अनदर ट्रांसफॉर्मेशन बना देंगे, तो फिर हमारी ट्रांसफॉर्मेशन विल बी लिमिटेड ओनली फॉर दैट वन डे। वो फिर रोज रोज न्यू बिल्ड करना थोड़ा मुश्किल तो इतनी लगता है। टफ मत करो जो रोज बिल्ड नहीं हो सकती हैं। डोंट मेक इट वेरी टफ, मेक इट प्रैक्टिकल। देखिए, अगर ट्रांसफॉर्मेशंस नहीं होंगी तो चेंजेस भी कैसे आएंगे हमारे, है ना। अभी हमें ऐसा लगता है कि वो बहुत मुश्किल है, लेकिन धीरे धीरे वो लाइफ का पार्ट बन जाएंगी। दे विल नॉट टेक एक्स्ट्रा स्पेस इन योर लाइफ, दे विल बिकम अ पार्ट ऑफ आवर संस्कार। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक आर्मी मैन है, वो रोज सुबह 3 बजे उठते हैं, आर्मी की ट्रेनिंग लेते हैं, उनके लिए वो एक उनके संस्कार बन गए हैं। वो उनको अब एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ता। आज अगर किसी नॉर्मल बिजनेसमैन को बोलेंगे कि सुबह 3 बजे उठ करके ऐसे प्रैक्टिस करनी है, इतनी देर दौड़ना है, फिर उसके बाद ऐसी प्रैक्टिस करनी है, it will be very difficult for him. But eventually for an army man it is not a problem.
सेम विद दी डिवोटीज जो आश्रम में है, उन लोगों के लिए सुबह 3 बजे उठ करके नहा करके ठंडे पानी में नहा करके 4 बजे मंगल आरती में उतरना कितना ईजी है। या आप लोग भी सुबह 6 बजे उठ करके या 5:30 बजे उठ करके, कितने भी बजे उठ करके 6 बजे आकर के महाराज की क्लास में आ जाते हैं। ये सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है ऐसा। तो ये सारे हमारे नए संस्कार डेवलप हो गए जिसके अंदर ये बहुत इजीली अडाप्ट हो गया। तो जब तक ये पुरानी हैबिट्स को हम ब्रेक नहीं करेंगे, कॉन्स्टेंटली ब्रेक नहीं करेंगे, एवरी डे ब्रेक नहीं करेंगे, तो ये ब्रेक नहीं होंगी अपने आप से। विल हैव टू मेक एन एफर्ट। सो रियलाइजेशंस, जब हमें डीपर रियलाइजेशंस आएंगी तो ट्रांसफॉर्मेशंस विल बिकम वेरी ऑटोमेटिक। वी विल नॉट हैव टू मेक मच एफर्ट्स। जब डीप विद इन हम इसको रियलाइज कर लेंगे इन चीजों को, तो वहां से इंस्पिरेशन अपने आप आ जाती है ट्रांसफॉर्म होने की। जितनी क्वालिटी ऑफ रियलाइजेशंस विल बी हायर, उतनी ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन विल बी इजियर। और जितनी कॉन्टेम्पलेशंस विल बी डीपर, realizations will be easier. So we have to focus on contemplations, deep contemplations. Realizations will come, transformation will be very easy. अभी नींद की बात है, जिस नींद ने हमको आज घेरा हुआ है पूरी तरह से पूरी तरह से घेरा हुआ है। मुझे याद है हमारे बच्चे जब पहले हम लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं थे, तो जब कहीं बाहर जा रहे थे घूमने के लिए, हॉलिडे के लिए, तो फ्लाइट 6 बजे की थी, बच्चों को पूरी रात नींद नहीं आती थी। घूमने जाना था ना, तो उनकी डीप कॉन्शियसनेस में ये घूमने का था। दे यूज्ड टू गेट अप वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग और वुड नॉट इवन स्लीप इन द नाइट। ऐसा होता था सारंग? मेरे साथ तो ऐसा ज्यादा हुआ नहीं है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सी कि जैसा हमारा अंदर का कॉन्शियसनेस डेवलप होता रहता है, वैसे ही हम चीजों पर कंट्रोल पा पाते हैं। नींद के ऊपर भी कंट्रोल, जो व्यक्ति साधना करने लगता है, जो व्यक्ति को टेस्ट आने लगता है, रियलाइज करने लगते हैं इन चीजों को, तो फिर नींद हमें कंट्रोल नहीं कर पाती। इट इज ऑल अबाउट दैट स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। सो जितनी डीपर रियलाइजेशंस आएंगी, उतना ज्यादा हम लोग इन चीजों को कंट्रोल कर पाएंगे। Actually, realization and transformation, they are the core thing in this. They are the core things. बाकी सब कुछ उन्हीं के अराउंड है। डीपली रियलाइज करके लाइफ को चेंज करना। यस, निपुण प्रभु। हाय कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। इंस्ट्रक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन मतलब हाउ दे आर रिलेटेड? पहले हमें ये समझना कि भगवान ने हमें क्या बोला है। हमें ये बोला करने के लिए कि अगेन एग्जांपल, डिटैच होकर के काम करना, रिजल्ट्स के ऊपर तुम्हारा हक नहीं है। हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब अब उसको मैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कौन सा एक्शन करूंगा उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए। व्हाट इज द एक्शन इन द डेली लाइफ दैट आई विल टेक? प्रैक्टिकल एक्शन जो मैं कर सकता हूं। भगवान का इंस्ट्रक्शन तो बहुत ही बड़ा है, इट्स डिटैच। क्या मैं आज एक छोटी सी चीज से डिटैच हो सकता हूं? मे बी दैट इज माई ट्रांसफॉर्मेशन। तो वो छोटी सी डिटैचमेंट क्या लाऊं अपनी लाइफ के अंदर? यस, गौरव प्रभु। प्रभु जी, ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो रियलाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में आएगा कि हमने कुछ अप्लाई करने का ट्राई किया लाइफ में, और उसके बाद में हमें कुछ रियलाइजेशन आए उसके बाद कि यस यस यस। तो रियलाइजेशंस विल कीप हैपनिंग इवन आफ्टर, बट रियलाइजेशंस आने के बाद आपको ट्रांसफॉर्मेशन की शक्ति मिलेगी। जब तक आप चीज को रियलाइज नहीं करोगे तो आप ट्रांसफॉर्म करने की तरफ बढ़ोगे ही नहीं। Once you deep, देखो, when the knowledge gets transformed into realization, जब नॉलेज पूरी रियलाइजेशन बन जाती है, तब आप उसको प्रैक्टिकली लाइफ के अंदर चेंज लाने की। ट्रांसफॉर्मेशन इज नथिंग बट चेंजेस लाना, चेंजेस की मोटिवेशन लाना, वो रियलाइजेशन से आएगी। यस ईश। आई हैव 2 क्वेश्चंस। एक जो गौरव प्रभु जी ने बोला, I want to ask this with an example. For example, I say that after hearing Maharaj's lecture, I want to improve my sadhana. Let's say I want to increase my hearing, and I say that as a transformation, I will hear Amarendra Prabhuji's lecture,
every day from 7 to 8 after Maharaji's class, just for an example. But sometimes how do I put this? The changes that I will, the transformations which I will say I will do, they are not realizations. They are just coming out of motivation. तो उस ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद ही तो मेरे को, अगर मैं उसमें सस्टेन कर गया, तो फिर मेरे को रियलाइजेशन आएगी, अच्छा मैंने वो किया था, 1 घंटा रोज हियरिंग किया था, उससे मेरी लाइफ में ये चेंज आया. तो ट्रांसफॉर्मेशन थियोरेटिकल रियलाइजेशन से कैसे आ सकती है? अभी हम एक एक पॉइंट के ऊपर आने वाले टाइम में डीप में जाएंगे. ऑल दीज 10 पॉइंट्स. Realizations are not something that you contemplate deeply, only then realizations will come. Sometimes when you are hearing Maharaj's lecture, even while hearing the lecture only, you will realize and get motivated towards Amarendra Prabhu's lecture also. तो आपको उसी टाइम पे वो रियलाइजेशन आया, रियलाइजेशन से ही मोटिवेशन आया आपको. You did not make the notes through contemplation, but the lecture from Maharaj was so effective, so profound in you, and your consciousness was very ready to receive it at that time. तो इसलिए आप मोटिवेट हो गए उस टाइम पे. You realized it. This is the importance of this time, that I should really spend my next 1 hour to hear the spiritual lecture. That was a realization that came, and because of which you were inspired to spend 1 hour more to hear the lecture of Amarendra Prabhu. So then motivation would just be another way of saying transformation. तो अगर मैं उसको ऐसे लिख रहा हूँ कि I realize that I should hear lectures more that will improve my spiritual consciousness, then that is my realization. ये मेरी realization जैसे count होगी. That is your realization, and that you will hear every day. इतने बजे ये लेक्चर सुनाऊंगा मैं, या ये सीरीज पूरी करूंगा मैं एक प्रभु जी की. दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन, कि आपने ये चेंज ला रहे हो अपनी लाइफ के अंदर आप. ठीक है. अब आई हैव अ सीक्वल क्वेश्चन फ्रॉम दिस. तो इसके बाद मेरा अगले दिन एक और ट्रांसफॉर्मेशन मैंने लिखा, बट व्हाट द हैबिट्स दैट आई वांट टू डेवलप विल नॉट बी सस्टेनेबल ओनली. अगर मैं आज एक हैबिट करूंगा, कल फिर एक और चीज करने का मन यही बात करेगा. अभी हाँ, यही बात अभी गोपी ने भी पूछी थी. तो इसलिए राइट योर practical transformations for now, which you can practically adopt in your life. जितनी चीजें कर सकते हैं उतनी करो. इसके बाद 1-2 पॉइंट्स और आ रहे हैं, उसके बाद आप क्वेश्चन करोगे तो उसमें शायद कुछ चीजें आंसर हो जाएंगी. सारंग, यस. प्रभु जी, जितना मैंने समझा, सो रियलाइजेशन इज कि मैंने दुनिया में ये चीज होते हुए ऑब्जर्व किया अब तक, एंड आज मैंने ये श्लोका सुना, एंड आई वाज लाइक, ओ हाँ, दिस वाज ट्रू. एंड वो इतना क्लिक किया कि हाँ, अब से मैं आई लिव डिफरेंटली. तो ये रियलाइजेशन हुई ना, क्योंकि ऐसा हुआ है मेरे साथ दैट जैसे 2 years ago अगर मैं सेम श्लोका पढ़ रहा होता, इट वुड नॉट हैव स्पोकन टू मी, बिकॉज शायद वो एक्सपीरियंस मैंने देखा ही ना होता कि जिसके बारे में वो श्लोका बात कर रहे हैं. तो इज इट पॉसिबल टू have realizations of every shloka every day? If you contemplate deep enough, yes. आपने बिल्कुल सही कहा. जब हम contemplate करते हैं तो हमें reflections आती हैं कि लाइफ ऐसे चल रही है, लोग ऐसे करते हैं, ये गलत है, ये सही है, मैंने भी ऐसा किया अपनी लाइफ में, मेरे से ये गलतियां हुई. ये रिफ्लेक्शंस आनी शुरू हो जाएंगी आपको. तो इससे डीपर रियलाइजेशंस आएंगी. ये नॉलेज आपके सामने साक्षात खड़ी हो जाएगी. हाँ, दिस नॉलेज इज द ट्रूथ. This is the absolute truth. There is nothing which other than this which is truth. ऐसे खड़ा हो जाएगा आपके आगे आकर के. आपको दिखने लग जाएगा ये सच आपको दिखना, ये नॉलेज आपको दिखनी शुरू हो जाएगी, पिक्चर फॉर्म में दिखनी शुरू हो जाएगी. You will have a strong belief in this. तो जब ये आना शुरू हो जाएगा तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन की शक्ति मिल जाएगी अपने आप से. मोटिवेशन मिलेगी ट्रांसफॉर्म होने की. अभी भी जो भी कोई व्यक्ति आज इस क्लास में भी आया है, जो कोई व्यक्ति सुबह उठ करके महाराज के लेक्चर्स भी सुनता है, जो भी कोई हम स्पिरिचुअल एक्शन आज कर रहे हैं, वो सिर्फ हम अपनी रियलाइजेशंस की वजह से ही कर पा रहे हैं. हमने कुछ रियलाइज किया अंदर, जिसकी वजह से हम ये कर पा रहे हैं. जिसने जितना जितना रियलाइज किया उतना उतना वो कर पा रहा है. जो जितना डीपली चीजों को रियलाइज कर पा रहा है, उतना ही उसको प्रेरणा मिल रही है अपनी एक्शंस में चीजों को लाने की. So the core essence of all of this is realization, not even transformation, because if realization is deep enough, transformation is automatic.
So next point, Vrinda. Next point is sharing. Point number 9, step 9. Sharing involves discussing and sharing your insights, realizations, and transformations with others. This step can enhance your understanding and provide opportunities for preaching. आज हमने कोई श्लोक सुना, जैसे कि आज महाराज ने जो 3.27 बताया कि ज्ञानी और अज्ञानी व्यक्ति के बीच में क्या डिफरेंस होता है, कि एक अहम को अपनी सेल्फ को, बॉडी को सेल्फ मानता है और एक आत्मा को सेल्फ मानता है। ज्ञानी व्यक्ति आत्मा को सेल्फ मानता है, जिससे वो जो कि अनचेंजेबल है, जो भी कुछ चेंज हो रहा है कहाँ हो रहा है, बाहर हो रहा है। तो जब हम यही लेक्चर को सुन करके, अपने रियलाइजेशंस लिख करके, ट्रांसफॉर्मेशंस लिख करके, उसका पूरा आर्टिकल बना करके, उसका हेडिंग बना करके, सब हेडिंग बना करके, सब करके किसी से शेयर करें, अगर हम, वो कोई भी हो सकता है, अगर हमारे आसपास घर में नहीं है तो फोन करके भी शेयर कर सकते हैं, उसको हम शेयर करेंगे तो इट विल हेल्प अस in our deeper understanding. The other person might ask some question, so it will also help us in preaching. It will help that person also. So even if it is very small, 5 minutes talk, 10 minutes, जितना deep होगा उतना अच्छा है, हमारे अपने लिए है, लेकिन this is a practice that also we should follow. अपनी मम्मी को, जिसको सबको आता है ऑलरेडी, मान लो अंजलि अपनी मदर से बात करती है, मैंने सीखा, आपने क्या सीखा, लेट्स शेयर, लेट्स डिस्कस, जस्ट चर्न इट. So this is something which will help. Yes, Ish? Your hand is raised, sorry. Yes, last point. Vrinda. Last point is accountability. Accountability ensures that you have someone who is tracking your progress in implementation of your transformations. This person acts for you as a coach and helps to keep you on track and motivated. Okay, that's the last point. तो एक व्यक्ति हमारे जीवन में ऐसा होना चाहिए, टाइम टू टाइम वो चेंज भी हो सकता है, जो जिसके पास हमारे सारे ट्रांसफॉर्मेशंस रहें. वी कैन डू ऑल ऑफ दिस थिंग्स और लुक छुप करके इसको छुपा के कहीं रख देंगे डायरी के अंदर, तो फिर क्या होगा? अगर हम किसी को अकाउंटेबल नहीं है इन सब चीजों के लिए, कोई कोच नहीं है हमारी लाइफ के अंदर जिसको हम पूरा दे सकते हैं कि दिस इज व्हाट, वेयर आई स्टैंड, प्लीज हेल्प मी. And that may not be spiritual master always, because he may not be responsible or may not be able to give you so much of time for your everyday transformations. But Gopi, for example, you can give it to your mom. अपनी मदर को आप दे सकते हैं कि मम्मी ये मैंने लिखा है, नोट्स है मेरे, ये आप रखो और आप मुझे ट्रैक करते रहा करो. अगर मैं इनको फॉलो नहीं कर रही हूँ और कुछ भी गलत जा रही हूँ या नहीं कर पा रही हूँ, जस्ट एक वीक में बैठ करके, अब हम वीक में एक बार बैठेंगे और आप मुझे बताना है मैं am I faring good or bad, और मुझे क्या करना चाहिए. जस्ट हेल्प मी एंड कीप मी मोटिवेटेड टुवर्ड्स द ट्रांसफॉर्मेशन. तो इस तरह से वी नीड अ फ्रेंड लाइक दैट हु इज गोइंग टू कीप अस ऑन ट्रैक, हु वी ट्रस्ट इज नॉट गोइंग टू जज अस एनी टाइम. जो कोई हमें कभी जज नहीं करेगा, वो हमारा वेल विशर है, वो हमें हेल्प करेगा इसके अंदर, हु कैन एक्चुअली गिव दिस सैक्रिफाइस फॉर अवर लाइफ, कि अपना टाइम निकालेगा. तो ऐसे व्यक्ति हमारी लाइफ में एक जना जरूर होना चाहिए, ऐसा एक स्पिरिचुअल कोच हमारी लाइफ में जरूर होना चाहिए, जिसके सामने हम जा करके अपनी इन सब चीजों को, मैंने ऐसा रियलाइज किया लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आई, तो ये मैंने लिख तो दी, ट्रांसफॉर्मेशन आ नहीं रही है, प्लीज हेल्प मी, मैं क्या कर सकता हूँ. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट क्रिटिकल अगेन. सो दीज आर दी 10 पॉइंट्स. वी कैन इन द नेक्स्ट सेशंस डिस्कस इन डिटेल. और अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग, आज तो टाइम ज्यादा हो गया, नेक्स्ट सेशन में महाराज का एक लेक्चर ले करके 20 मिनट का लेक्चर होगा और 40 मिनट्स में फिर हम सारे ये बनाएंगे एक एक करके. और लॉजिस्टिकली ये वृंदा समझाएगी. वृंदा कहाँ है? वृंदा समझाओ कि कैसे आप इसको पुट टुगेदर करने वाले हो. सो एक प्लेटफॉर्म है नोशन, आई कैन स्क्रीन शेयर. आई हैड क्रिएटेड सम. ओके. So this way, this is Notion. I previously had made some lecture notes of Maharaj on it. So 1 second. So
So I for would example, suggest everybody can download the app. Vrinda also, you can also download the app. It is much more easier and friendly for Notion. okay. So for example, I made Bhagavatam notes. So under Bhagavatam, I have many. For example, under Bhagavatam, I go to Canto 1. Then in this also, I can select this, and then I have heading, subheading, and text. This is heading, subheading, and text. So we can easily store our notes verse by verse here, and we can share it to our masters who can see what we have written. So this way we can easily compile all our notes under various headings. So this is the platform Notion. But what about the points that we have written 10 points जैसे हमें Google में किया था उस दिन Hare Krishna, can I try to Yes. screen share? Yes, I yes, go ahead, go ahead. noted down some things. हरे कृष्णा, क्या ये सिर्फ लैपटॉप पे कर पाएंगे हम या फोन पर भी we can do? फोन पर भी माता जी फोन पे भी कर सकते हैं Right. क्योंकि सबके पास लैपटॉप हो ये जरूरी नहीं है ना. नहीं फोन पे है माता जी है दिस इज एन ऐप है आप उसको फोन पे कर सकते हैं यूज यस इश So I just created this template on Notion. This is the verse name. Then I have just written down the translation of the verse. Yes. Then a heading. So heading जो भी यहाँ पे होगी यहाँ पे लिख देंगे text. Yes. और ये bold में और इसका heading का size भी बड़ा है अभी वो heading. yes very nice. उस पे एक size छोटा सब heading है तो उसी के नीचे और उसके नीचे फिर हमारे notes हैं जो महाराज जी ने बोले in magazine form. Yes आर्टिकल लिख दिया आपने पूरा. फिर spiritual vocabulary, my instruction from Krishna, my realization, my transformation और यहाँ पे फिर फोटो डाल सकते हैं अटैच कर सकते हैं. फोटो आप कुछ भी ड्रॉ करके पेन पेपर पे कहीं पेपर पे ड्रॉ करके उसकी फोटो खींच करके वो अटैच हो जाता है वो यहीं पे इकट्ठा हो जाएगा वो भी. तो इसमें ऐसे फोल्डर बन जाता है जैसे भगवद गीता मॉर्निंग विद महाराज का एक फोल्डर है मेरे पुराने वाले थे तो यहाँ पे फिर आपके डे बाय डे नोट्स ऐड होते रहेंगे. यस सो ये आपको टेक्नोलॉजी का इसका पूरा क्लासेस ईश कैन टेक बिकॉज ईश हैज बीन यूजिंग इट फॉर मच लॉन्गर. ये अगर किसी को शेयर जो हमारा शेयरिंग वाला है ये वेबसाइट बन के शेयर हो जाता है तो शेयर फॉर्मेट में यू जस्ट पब्लिश टू वेबसाइट एंड देन कॉपी लिंक ये रहा. उसके बाद जब आप पेस्ट करते हैं लिंक को तो वेबसाइट बन जाती है पूरी एक एक वर्स एक एक वेबसाइट बन जाएगी बेसिकली. ठीक है दैट इज टू हाई टेक फॉर मी but yes it is good to do it in this way because पूरा information कहीं एक जगह पर इकट्ठा हो जाएगा properly हम सबका और कभी भी हम एक दूसरे के जैसे visuals देखना चाहते हैं कि 3.27 का visual सबका क्या क्या visual है तो it will be very nice to see oh this is the contemplation of this person amazing so it will really help all of us. So let us here if anybody has any question or any suggestion in this. Any questions, any suggestions, any comment? Is it looking practical, impractical? Yes, Lakshay Prabhu. Thank you, Prabhu, for such an amazing session. Prabhu, इसमें एक doubt था कि like for example yesterday we were discussing in our meeting कि on one hand we are giving students leave just because of their studies. Half an hour leave दे रहे हैं उन्हें. For example, if they can't come at 6, they can come at 6:30. और दूसरी जगह हम उन्हें बोल रहे हैं कि you have to churn, you have to contemplate, you have to write all these things. It's going to take time. Even in future also it's going to take 1 to 2 hours. So एक जगह उन्हें they are asking for half hour leave and on other end we are telling them no you have to dedicate 2 to 3 hours a day. So how we can understand this? So kids used to come to the
Japa Academy, Japa morning at 5 o'clock or something. We gave 1 hour from there. हमें बोला 6 बजे आ जाओ आप, 5 बजे आने की जरूरत नहीं है. So we made only 15 minutes, 2 rounds mandatory in the group. Then they have freedom to chant anytime. They used to have 8 to 9 o'clock class from Gita class. वो mandatory class गौरव प्रभु रोज लेते थे. वो class हमने बंद कर दिया. So basically we have closed everything. We have just focused Maharaj's lecture. That's it. Every day Gita lecture and deeply contemplate that lecture. That's it. So our plan for these kids is, if their base foundation of this Bhagavad Gita is deep, absolutely deep, coming from Maharaj's lotus mouth and going into their deep consciousness, then that is the biggest victory for their life. If you see, आजकल ये बच्चे जब hosting करते हैं, I am surprised to see how they are hosting. They are doing so well compared to they were doing just 2-3 months back. So इतना अच्छा development हो रहा है. It's all because of Maharaj's, mercy that is flowing in the morning. So इस तरह से अगर महाराज के वर्ड्स को हमने उनकी मर्सी को वैसे पकड़ करके उसको पूरी तरह कॉन्टेम्पलेट कर लिया, उसको डीपली कॉन्टेम्पलेट करके रियलाइज कर लिया. सो क्योंकि वो वहां से तो मर्सी मिल रही है, बट हमें अपना पॉट को ओपन करके रखना है. तो दिस प्रोसेस इज गोइंग टू इंक्रीज द मर्सी. इट इज गोइंग टू गेट द मर्सी रियली इनटू आवर लाइफ एंड विल सी ह्यूज चेंजेस. ये जो छोटे छोटे चेंजेस देख रहे हैं, इससे बहुत बड़े चेंजेस बहुत जल्दी आ जाएंगे. It's not about reading too many scriptures, hearing too many lectures. Everything will come just from this one exercise, from one verse, one day. That's it. For next 2 years, 3 years. रोज का सिर्फ एक वर्स. अगर हम एक वर्स के ऊपर डीपली कॉन्टेम्पलेट कर लें रोज, instead of reading Bhagavatam, no need. CC, no need. CB, no need. Only everything will come if this foundation is correct. वो सब चीजें बहुत अच्छे से हो जाएंगी अगर ये फाउंडेशन हमारी डीपली कॉन्टेम्पलेट करने के बाद रियलाइज्ड होगी. तो दिस इज द एसेंस ऑफ ऑल स्क्रिप्चर्स, भगवद गीता. देन वी विल आल्सो हैव अ गुड टेस्ट टू डेवलप फॉर द अदर स्क्रिप्चर्स आल्सो. सो 1 घंटा 2 घंटा ये तो बच्चों को निकालना ही है. ऐसे नहीं है कि गीता एकेडमी जो पहले बच्चे 3 घंटे लगा रहे थे, उससे अब 3 साल वो पढ़ने के बाद हम उसको ग्रेजुएट करके नेक्स्ट लेवल पे लेकर के आए हैं. दिस इज अ secondary education for them. So they have to spend more time, they have to work more hard, and slowly we'll see. जैसे जैसे हम कोई प्रैक्टिस हो जाएगा, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. We will get adapted to अभी 2 घंटे लग सकते हैं, धीरे धीरे 1.5 घंटे और 1 घंटे में भी ये सब रियलाइजेशन आनी शुरू हो जाएंगी. Because we will be in the flow of that. We'll get into that flow. और वो फ्लो हमारा पूरे दिन रहना शुरू हो जाएगा. अभी हमें लग रहा है वो 1 घंटा लग रहा है, 1 घंटा नहीं, वो पूरा दिन में ही वैसा फ्लो रहेगा अगले दिन तक हमारा, जब डीपली कॉन्टेम्पलेट कर लेंगे तो. और अपने आप ही द आइडिया इज दैट this whole contemplation realization should become so deep that everybody will start to get up at 4 o'clock in the morning from their will, not by force. Hopefully ऐसा होगा by your mercy. So we are not forcing anybody कि ऐसा ही करो, but this is the ideal thing to do. So everybody please try. If this is just for our own spiritual progress, then we can start slowly and slowly. जितने points हम कर सकते हैं उतने करने शुरू कर सकते हैं. It is for our own benefit. किसी और के लिए नहीं है. ये तो पूरा हमारा अपना ही एक पूरा लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट काम यही है. This one thing is the most important thing of the day for our life. Even our chanting will improve only after this. Because chanting क्या है? Chanting अपनी शक्ति से नहीं कर सकते, मर्सी से कर सकते हैं. What is this we are talking is this is mercy. मर्सी ऑफ कृष्णा, मर्सी ऑफ गुरुदेव, सब कुछ इसके अंदर आ गया. गुरु एंड गौरंग की मर्सी है इसके अंदर. इस मर्सी के ऊपर हम कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं. इस मर्सी पे कॉन्टेम्पलेट करके हमारे अंदर अपने आप ही चैंटिंग के लिए टेस्ट आ जाएगा. सो एनीबडी एल्स? डज दैट आंसर योर क्वेश्चन, लक्ष्य प्रभु? Yes, Prabhuji, definitely. So anybody else, any question or suggestion, feedback? No? Muskan Sharma?
प्रभु आई हैव वन क्वेश्चन। जो आपने टाइटल जैसे बिल्कुल पूरे उसका जिस्ट हो गया नोट मेकिंग का क्वेश्चन है, या जैसे महाराज ने 3.24 में 3 पार्ट्स बताए थे? इट्स लैगिंग, एम आई ऑडिबल? थोड़ा वॉइस क्रैक हो रहा है आपका। अब ठीक है प्रभु जी? हाँ हाँ बताइए। यस। हाँ, तो सबटाइटल बेसिकली टाइटल का ही थोड़ा सा 2-3 लाइन में एक्सप्लेनेशन है, या तो जैसे महाराज ने 3.24 में बताया था कि 3 पार्ट्स में एक्सप्लेन किया था उसको कि मतलब भगवान अगर सावधान नहीं होंगे तो 3 चीजें हो सकती हैं, मनुष्य, हन्य और वर्ण शंकर और नहीं नहीं, डेथ हो सकती ये सब आपका डिटेल में आएगा। उसका जो एसेंस है वो खाली आपको सब हेडिंग में लिखना है, सब टाइटल में लिखना है। है। ठीक है, ओके, थैंक यू प्रभु। Thank you. All right, thank you everyone. So let us start this. I think ईश और वृंदा मिल करके इस टेक्नोलॉजी को, ऐप को सबको बताएंगे कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इसको यूज कर सकते हैं। So maybe in next few days we'll start to focus on this. And अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे अलग से भी पूछ सकता है, और हम लोग इसके 30 सेशंस करेंगे ऐसे। We'll do 30 such sessions, which means we'll take a verse and we'll hear a lecture and do that whole process. और देखते हैं कि कितनी देर में हम क्या कर पा रहे हैं, क्या नहीं कर पा रहे, क्या challenges आ रहे हैं। Yes, सुरेखा माता जी। because I am completely zero in technical issues, तो जब तक हम लोग को ये समझ नहीं आ जाता how to use it, and तब तक हम कैसे मैनेज करेंगे? आप गूगल फॉर्म यूज कर सकते हैं, गूगल शीट्स, गूगल फॉर्म, कोई शीट नहीं तो गूगल फॉर्म पे हमने बना दिया है इसको। तो तब तक के लिए वृंदा आप गूगल फॉर्म दे सकते हो। ठीक है माता जी, तो विल स्टार्ट, डोंट वरी, 1 हफ्ते के अंदर सब कुछ हो जाएगा। आप टेक्निकली एकदम स्ट्रांग हो जाओगे, प्रकृति सब कुछ करा देगी, हमें कुछ नहीं करना होता, प्रकृति इज देयर। So thank you very much everyone for bearing me for 100 minutes. Thank you. Hare Krishna, Danat Pranam, Pancha Kaltrobhyasya Kripa Sindhu Ev Cha Patna. Hare Krishna. So we would like to thank Vinod and Puji also for such an amazing session. It's the genuine compassion. Mahatma Prabhuji used to say that spiritual compassion. Material compassion is different, spiritual compassion is different. He has come just to give us the gist of Gita. So, and in a systematic manner. So I'd like to thank Prabhuji by loudly chanting 3 times Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. सुनो जी की गीता एकेडमी के सभी पार्टिसिपेंट्स की जय जय। जय।